Hello and welcome to the 20th lecture of your spoken English classes. This is your tutor of English, Tanya. In previous lectures, we have covered different grammatical rules and different aspects of forming a sentence in English. Other than that, we have also learned how we can make and pronounce different words and sentences in English so that we can sound like a native English speaker. In this video or lecture, we are going to cover some common errors that we do and that are very much wrong in English language. We are going to cover more than 100 sentences today so that we can learn more about English and pronouncing right English. So, while speaking, people make common errors. To help them avoid the grammatical errors below or the common errors below are given with some examples and we can cover the pitfalls. Pitfalls मतलब जो कि हम कमियां रखते हैं अपने sentences में उसको ठीक कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो incorrect sentence हम use करते हैं. Firstly, we'll discuss the incorrect sentence and then we will discuss the correct sentence on the place of it. Fine. So the first incorrect sentence is John is kindness, so many people want to chat with him. अब kindness क्या है? Kindness मतलब वो दयालु है, ठीक है, बट वो दयालु उसके अंदर दया का भाव है इस kindness, बट यहाँ पर हमने John का जो है वो adjective बताना है. So the adjective to it is kind, not kindness. So the right sentence will be John is so kind that many people want to chat with him. John इतना दयालु है कि बहुत सारे लोग उससे बात करना चाहते हैं. The next one is Had you come to Korea, गांधी? क्या तुम कोरिया आए हो? बट आप यहाँ देखो जिससे वो बात कर रहा है वो क्या है, बाद में आ रहा है और ऊपर से हम जैसे लिख रहे हैं तो पहले हम अपना एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं एंड देन वी आर स्पीकिंग आउट द नेम. दैट इज वेरी मच रॉन्ग. इट इज हैव यू एवर बीन, क्या तुम कभी आई हो कोरिया, एंड देन द नेम ऑफ द पर्सन एंड देन एट द लास्ट द क्वेश्चन मार्क विल बी देयर. देयर विल बी नो टू डिफरेंट सेंटेंसेज, देयर विल बी अ सिंगल सेंटेंस. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज चैन आर योर वर्क बिजी, क्या तुम्हारा काम बिजी है? क्या ये सही आंसर क्वेश्चन है? नो. द राइट क्वेश्चन विल बी जैन डू यू हैव अ बिजी जॉब, क्या तुम्हारी जो जॉब है या फिर जो तुम काम करते हो उसमें तुम बिजी रहते हो. सो जैन डू यू हैव अ बिजी जॉब, या फिर जॉन डू यू रिमेन बिजी एट योर वर्क. ओके. द नेक्स्ट वन इज आई एम गोइंग टू अ पिकनिक, मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ. बट to a picnic is wrong. We have to study more of the right prepositional verbs. So the right sentence will be I am going on a picnic. Picnic पर जाया जाता है, so that is on, not to. अगर यहीं पर place का नाम होता तो हम to लिखते. Are you going to Paris? तब on नहीं आता, but here is just a word picnic, इसलिए picnic के साथ हम on का यूज़ करेंगे. अगर कोई specific place है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? to या फिर at का यूज़ करेंगे. Now the next is I am a bit in hurry. I am bit in a hurry. That is wrong, क्योंकि a bit जो है वो किसका verb है? हरी का word है, तो हम हरी से just पहले उसको यूज़ करेंगे. So the right word would be I am in a bit of hurry. मतलब in a bit of what? In bit of hurry. मुझे थोड़ी सी जल्दी है. Fine. The next incorrect sentence is Arling, what is Hong Kong interesting? क्या इंटरेस्टिंग है हांगकॉन्ग में? हमें कुछ ऐसा बोलना है, लेकिन उसमें क्या इंटरेस्टिंग है ये हम कहाँ बोल रहे हैं, में कहाँ है इसमें. हेंस दिस इज रॉन्ग. द राइट सेंटेंस वुड बी आर्लिंग, आर्लिंग इज अ नेम. फाइन. आर्लिंग व्हाट इज इन हांगकॉन्ग विच इज इंटरेस्टिंग, या फिर आर्लिंग व्हाट इज इंटरेस्टिंग एट हांगकॉन्ग, या फिर इन हांगकॉन्ग. हांगकॉन्ग में क्या इंटरेस्टिंग है. द नेक्स्ट वन इज आई विल डेट हर आउट दिस सैटरडे. डेट हर आउट, व्हाट इज डेट हर आउट? दिस इज वेरी मच रॉन्ग. सो आई विल टेक हर आउट ऑन अ डेट दिस सैटरडे, मैं उसे लेकर जाऊँगा. Now the next one is my house is to 10 minutes for her. My house is to. To हम किस जगह के लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ की प्लेस बता रहे हो. बट here we are not telling any place. प्लेस तो हम पहले बता चुके हैं. So my house is 10 minutes far from her. Either this or it is a 10-minute drive from my house to her. या फिर हर्स प्लेस या टू हर्स वट एवर. हर्स यहाँ पर क्या है? हर्स का यहाँ पर मतलब है उसके घर से मेरा घर 10 मिनट की दूरी पर है. ड्राइव अवे फ्रॉम या फिर दैट मच फार. आई हैड टोल्ड यू आई एम फ्रॉम चाइना, मैं तुम्हें बता चुका था कि मैं चाइना से हूँ. नो.
आई हैड टोल्ड यू इज़ नथिंग, क्यों? क्योंकि जो आई होता है ना, आई इज़ कंसिडर्ड एज प्लूरल, सो कभी भी हैड नहीं आएगा, उसके बाद आई हैव आएगा, मैं तुम्हें बताया था। सो आई हैव टोल्ड यू बिफोर, पहले बता चुका हूँ दैट आई एम फ्रॉम चाइना, कि मैं चाइना से बिलोंग करता हूँ। द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस वी ऑफन यूज इज़ हाउ डू यू थिंक टू लर्न इन द इंग्लिश। तुम्हें कैसा लगता है कि तुम इंग्लिश सीखते हो? इज़ दिस मीन्स? नो, द राइट सेंटेंस इज व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ लर्निंग इन इंग्लिश। आपका क्या पॉइंट है इंग्लिश सीखने का? आप क्यों सीखना चाहते हो इंग्लिश? सो व्हाट इज़ योर एक्चुअल पॉइंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश? क्यों सीखना चाहते हो? सो नेक्स्ट इज वुड यू प्लीज़ डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, ओके? क्या तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे प्लीज़? नो, द राइट सेंटेंस इज वुड यू प्लीज़ नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन। वुड यू क्या आएगा? वुड यू प्लीज़ नॉट आस्क मी, डोंट नहीं होता, क्या है? डू नॉट, no sense of do not. So would you please don't ask me this question, okay? Next is I am heard music, मैंने सुन लिया था म्यूजिक। I am तो अपने आप में प्रेजेंट टेंस होता है, so we are mixing am and heard. This is wrong. The right is I am. पहली बात तो म्यूजिक के साथ कभी भी hear नहीं यूज होता। आप कभी भी कुछ पूछ रहे हैं आपसे कोई कि आप क्या कर रहे हो, you will never say I am hearing music. No, you are listening to the music. So it is I am listening to some music now. The next sentence we are going to study is okay, I will see you late. मैं तुम्हें देरी से देखूंगा। इज इट द राइट सेंटेंस? मैं तुम्हें देरी से देखूंगा या फिर मैं तुम्हें बाद में देखूंगा? बाद में देखूंगा। बाद की इंग्लिश क्या होती है? लेटर, नॉट लेट। लेट मतलब देरी से। सो द सेंटेंस वुड बी ओके आई विल सी यू लेटर। फाइन। द नेक्स्ट इज आई विश आई हैव। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे पास है। इज इट राइट? हम दुआ करते हैं उसके बाद ऐसे सोचते हैं ना कि काश ये होता। So that is not in present tense. Hence the right sentence would be I wish I had this. I wish ये मेरे पास होता। Fine. Next is I am going to watch the cinema tonight. मैं आज मूवी देखने वाला हूँ। I am going to watch a cinema tonight. अब इस बात का ध्यान रखो, सिनेमा बेसिकली हम कब वर्ड यूज़ करते हैं? सिनेमा हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक तो मूवी थिएटर में जा रहे हैं, ठीक है? सो मूवी थिएटर में जाकर हम कुछ देख रहे हैं, दैट टू आई विल वॉच अ सिनेमा एट अ हॉल टुमारो। इसलिए द बेटर वर्ड टू सिनेमा इज मूवी। फाइन। सो नेक्स्ट द राइट वर्ड वुड बी आई एम गोइंग टू अ मूवी टुनाइट। मैं मूवी पर जा रहा हूँ। आप हिंदी में यही बोलते हैं ना, आज मैं मूवी पे जा रहा हूँ। सो इट वुड बी आई वुड बी गोइंग टू मूवी टुनाइट। नेक्स्ट इज आई एम डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं मुश्किल हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। क्या ये सही सेंटेंस है? नो, आई एम फेसिंग डिफ़िकल्टी टू लर्न इंग्लिश। या तो ये हो सकता है कि मुझे डिफ़िकल्टी का सामना या फिर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इंग्लिश सीखने के लिए। सो इट वुड बी आई एम फेसिंग डिफ़िकल्टी टू लर्न इंग्लिश, या फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लर्न इंग्लिश। The next incorrect sentence is I still so surprised we were born in the same day. मैं अब भी इतना ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि हम एक ही दिन पैदा हुए थे। बट मैं इतना सरप्राइज अभी भी ऐसा हूँ, तो इट इज़ ED will be the right one. So I am still so surprised. मैं अभी भी चौंका हुआ हूँ, क्योंकि पहले से चौंकते आ रहे हो ना। So it is past tense, past perfect tense. So it would be I am so surprised that we are born on the same day. The next incorrect sentence is there some topic talk about. अब देखो, क्या कोई टॉपिक है बात करने? बस के लिए कहाँ है? नहीं है कोई भी। तो prepositions play a very much main role in a sentence. So the right sentence would be is there any topic to talk about today? The next incorrect sentence is give me a favor. No, कभी भी फेवर जो है ना वो दिया नहीं जाता है, इट इज़ डन, लिया जाता है। सो इट इज़ किया जाता है, नॉट लिया जाता है, इट्स किया जाता है। सो वुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर टुडे? क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर देंगे? क्या आप मेरी एक मदद कर देंगे? द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग वॉट यू से। मुझे समझ नहीं आ रहा जो तुम कहना चाह रहे हो। बट ये तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। सो वॉट यू से की जगह आएगा वॉट यू आर सेइंग, या फिर वॉट यू सेड, जो तुमने कहा था। अब भी कह रहा है तो वॉट यू आर सेइंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहा था तो इट इज़ सेड, से नहीं आएगा। फाइन। सो इट इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉट यू सेड। मुझे समझ नहीं आया जो तुम बोल गए। द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज देयर आर नॉट एनीथिंग रॉन्ग। अब एक बात बताओ, एनीथिंग मतलब एक चीज़, कोई एक चीज़ गलत नहीं है, तो आपने आर क्यों लगाया? ठीक है। सो नेक्स्ट द राइट सेंटेंस इज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, नॉट एनीथिंग बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। सो द राइट वन वुड बी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस। द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज व्हाई नॉट कम येस्टरडे। बोलना ये चाह रहा है कि तुम कल नहीं क्यों नहीं आए, बट
बीच में कोई preposition नहीं, कोई helping verb नहीं. Why? It is very much incomplete sentence. So the right sentence is why didn't you, did not मतलब कब क्यों नहीं आए, कल पूरा बीते हुए कल में तुम क्यों नहीं आए. Why didn't you come yesterday? The next incorrect sentence is what hobbies do you like? What hobbies do you like? हॉबी क्या होता है? हॉबी वही होता है जो हमें पसंद हो करना खाली टाइम में, और लास्ट में आप क्या लिख रहे हो? यू लाइक. दैट इज द सेम थिंग. वी आर सेइंग द सेम थिंग टू द टाइम्स. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी व्हाट इज योर हॉबी. व्हाट इज योर हॉबी. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज ऑलमोस्ट पीपल हेयर आई नेवर मेट बिफोर. ज़्यादातर लोग यहाँ मैं किसी से नहीं मिला. अब आपने बोलना क्या था? ज़्यादातर लोग जो यहाँ हैं उनसे मैं कभी नहीं मिला. आई एम मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो ऑलमोस्ट ऑल द पीपल हेयर आर, ये हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगाना है आपने, आर स्ट्रेंजर्स टू मी. आई हैव नेवर मेट बिफोर, जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला, और जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते उससे हम अनजान होते हैं, और अनजानों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर्स. सो ऑलमोस्ट ऑल द पीपल हेयर आर स्ट्रेंजर्स टू मी. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज यू आर क्वाइट अ कैरेक्टर. यू आर क्वाइट अ कैरेक्टर. अब ये क्या है? यू मस्ट बी क्वाइट अ कैरेक्टर. यू मस्ट बी, तुम्हें होना चाहिए. दैट डजंट मेक सेंस. हम किसी को एडवाइस थोड़ी दे रहे हैं यहाँ पर. सो यू आर क्वाइट अ कैरेक्टर. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज इन फैक्ट बिली रेयरली ओन सम पर्सनैलिटी टू बी अ VIP. बिली के पास पक्का कोई पर्सनैलिटी है. ओन सम पर्सनैलिटी टू बी अ VIP, बट कोई पर्सनैलिटी को ओन नहीं करता है. पर्सनैलिटी इज बेसिकली एन इनटेंजिबल एसेट. इनटेंजिबल एसेट मतलब एक ऐसी खूबी जिसको टच नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो अब वो ओन नहीं होती है, वो किसी के पास होती है. ठीक है, वो पर्सनैलिटी है उसकी. सो द राइट सेंटेंस विल बी इन फैक्ट बिली रियली हैज़ व्हाट इट टेक्स टू बी अ VIP. बिली के पास सच में ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक असल में VIP होने के लिए चाहिए होती हैं. द नेक्स्ट सेंटेंस इज जस्ट नाउ माई कनेक्शन हैव प्रॉब्लम. अभी मेरे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई है. कनेक्शन के पास कोई हैव है तो मतलब उसके पास कोई प्रॉब्लम हुई है. नो, आई हैड जस्ट कनेक्शन प्रॉब्लम. मेरे पास एक कनेक्शन प्रॉब्लम है. जॉय मे बी आई विल स्लीपलेस आफ्टर आई सॉ दिस पिक. जॉय मे बी मतलब जॉय क्या पता मैं स्लीपलेस हो जाऊंगा इस पिक्चर को देखने के बाद. डजंट मेक सेंस. जॉय आई मे बी स्लीपलेस टुनाइट आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर. जॉय तुमने मुझे जो पिक्चर दिखाई है देखने के बाद पक्का मुझे नींद नहीं आने वाली है रात को. सो द राइट सेंटेंस फॉर दिस इज जॉय आई मे बी स्लीपलेस टुनाइट आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर. इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इंग्लिश, तो आप अपनी नोटबुक में इन सभी इंग्लिश के सेंटेंसेस को और उनकी हिंदी ट्रांसलेशन को नोट डाउन कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप उनको यूज़ कर सकें अपनी डेली लाइफ में. ओनली द करेक्ट सेंटेंसेस रिमेंबर. ओके, सो द नेक्स्ट इज आई एम सो बोरिंग टुडे प्लीज़ ब्रिंग मी फन. मैं आज बहुत बोरिंग हूँ, मेरे लिए फ़न ले आओ. डज दैट मेक सेंस? नो. द करेक्ट सेंटेंस टू इट इज़ आई फील सो बोर्ड टुडे. मैं बहुत ज़्यादा बोरियत फील कर रहा हूँ. प्लीज़ से समथिंग फ़नी. क्या तुम प्लीज़ कुछ फ़नी सुना सकते हो? नेक्स्ट वन इज जूडी टॉम सेंट हिज पिक टू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम अगो. फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब कि फॉर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर हम कोई बहुत लंबा टाइम स्पैन बताने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? जूडी टॉम सेंट मी हिज पिक्चर अ लॉन्ग टाइम अगो. टॉम ने मुझे एक पिक्चर भेजी थी बहुत टाइम पहले. द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू कैन ट्राई इट मोर. तुम एक बार और इसको ट्राई कर सकते हो. यू कैन ट्राई इट मोर. द इनकरेक्ट वन इज यू कैन ट्राई इट मोर. क्या ट्राई इट मोर? वॉट वी हैव नॉट मैंशनड इट. प्लस इट मोर, यहाँ पर हमें इट हम बता रहे हैं तो इट एक प्रोनाउन है तो उसका एक नाउन भी ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल बी यू कैन ट्राई अ फ्यू टाइम्स. तुम्हें कुछ और बार ट्राई करना चाहिए. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज ही वेंट टू अब्रॉड फॉर फर्दर हिज स्टडीज़. अब द ही वेंट टू अब्रॉड, पहली बात तो टू अब्रॉड कुछ नहीं होता है, सिर्फ अब्रॉड होता है. अब्रॉड का मतलब ही होता है कि कहीं बाहर जाना. ठीक है, फिर टू फर्दर हिज स्टडीज़. फर्दर मतलब आगे, आगे बढ़ाने के लिए होता है ना. सो इट द राइट सेंटेंस इज ही वेंट अब्रॉड टू फर्दर हिज स्टडी, या फिर ही वेंट अब्रॉड टू फॉर फर्दर स्टडीज़ मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अब्रॉड जा रहा है. नेक्स्ट, बिकॉज दैट कैन लेट मी मोर टू बी क्लियर अबाउट योर टॉक. क्योंकि तुम्हें और ज़्यादा बताना चाहिए ताकि मुझे आपकी बात समझ में आ जाए. बट दैट डजंट मेक सेंस. द राइट इज बिकॉज दैट कैन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड वॉट यू सेड बेटर, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड बेटर कि तुमने अभी क्या कहा. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस वी आर गोइंग टू स्टडी इज डू यू लिव देयर फ्रॉम द डे यू बॉर्न.
अब देखो, क्या तुम वहाँ रह रहे हो जब से तुम पैदा हुए हो, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग सेंटेंस टू फॉर्म. पहली बात तो डिड यू लिव कुछ नहीं होता. हैव यू लिव्ड देयर सिंस बर्थ, सीधा इतना लंबा बोलने के लिए डे यू बर्न, उससे बेटर क्या है बर्थ. सो सिंस मतलब तब से, हेंस दिस इज द सिंप्लीफाइड एंड द राइट सेंटेंस. हैव यू लिव्ड देयर सिंस बर्थ या फिर सिंस यू आर बॉर्न. नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज यू आर वेरी लर्नड. तुमने बहुत सीखा हुआ है, तुमने मान लिया ये बोलना है, प्लस सीखा हुआ भी क्या है, तुम्हें बहुत नॉलेज है ये बोलना है आपको. तो द बेटर वर्ड विल बी यू आर वेरी नॉलेजेबल. तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है. लर्नड इज नॉट एनीथिंग. नेक्स्ट इज आई एम सॉरी माई कंप्यूटर हैव द प्रॉब्लम. कंप्यूटर के पास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. माई कंप्यूटर इज फेसिंग द प्रॉब्लम फिर भी हो सकता है, या फिर इट इज़ अ माल फंक्शन भी बोल सकते हो. आई एम सॉरी देर इज़ अ प्रॉब्लम विद माई कंप्यूटर. प्रॉब्लम उसके साथ है, सो देर इज़ अ प्रॉब्लम विद माई कंप्यूटर. नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज टुडे आई विल वॉश माई कैट. कैट को वॉश थोड़ी किया जाता है, इट्स नॉट अ कार, इट्स अ कैट. लिविंग बींग है, उसको वॉश नहीं करते कभी. सो टुडे आई विल गिव बाथ टू अ कैट, या फिर टुडे आई विल गिव माई कैट अ बाथ. आई विल गिव माई कैट अ बाथ टुडे. दीज आर द राइट सेंटेंसेज यू कैन यूज ऑन द प्लेस. अब आपने ये बोलना है कि मुझे मैं आज कार धोऊंगा, तो उसके लिए क्या है टुडे आई विल वॉश माई कार, दैट इज़ फाइन. अब कार के साथ आप बात नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. सो रिमेंबर, जब आप किसी लिविंग थिंग को कर रहे हो, डॉग हो गया, कैट हो गया, तो दोज बाथ नॉट वॉश, एंड कार एंड अदर थिंग्स commodities which are non living that are washed. The next incorrect sentence is how many days left for you quit your position. कितने दिन बचे हैं. for you मतलब तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे लिए तो नहीं है. सो नेक्स्ट इज द राइट सेंटेंस वुड बी हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट बिफोर यू क्विट योर जॉब. इससे पहले कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, कितने दिन बाकी हैं, या फिर तुम्हारे जॉब के कितने दिन बाकी हैं वुड बी द राइट सेंटेंस. नाउ हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट अंटिल यू क्विट योर जॉब. एक और हो सकता है बिफोर से ज़्यादा अच्छा, और भी क्या लग रहा है अंटिल, यानी कि जब तक तुम अपनी पोजीशन जो है, जॉब जो है वो छोड़ दोगे. वेल नाउ माई कनेक्शन हैव अ प्रॉब्लम. अब मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. हैव नो वर्ड, इट वुड बी वेल आई हैव सम प्रॉब्लम विद माई कनेक्शन. ध्यान रखो विद माई कनेक्शन, पहले भी हमने ये पढ़ा था. आप किसी चीज़ के पास होने की जगह हैव यूज़ करने की जगह आप विद का यूज़ करेंगे जब कोई कंप्यूटर या कनेक्शन में प्रॉब्लम है. दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद कंप्यूटर और अ प्रॉब्लम विद कनेक्शन. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज आई राइटेड. पहली बात तो राइटेड इज़ नथिंग. राइट का पास्ट टेंस होता है रोट, और उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है रिटन. सो राइटेड इज इन इट सेल्फ रॉन्ग. आई राइटेड द सेंटेंसेज योर्स डाउन मैगी. योर्स डाउन क्या होता है, मतलब मैंने तुम्हारे सेंटेंस लिख दिए हैं. सो आई जॉटेड डाउन, JOT जॉट DOWN डाउन, या फिर आई हैव रिटन डाउन योर सेंटेंसेज मैगी. मैगी यहाँ पर नाम है, फाइन. सो आई हैव रिटन डाउन योर सेंटेंसेज मैगी. The next incorrect sentence is did Thailand come into rainy season. पहले तो ये बताओ, कोई जगह रेनी सीजन में आती है, रेनी सीजन किसी जगह पर आता है, रेनी सीजन किसी जगह पर आता है ना. सो द राइट सेंटेंस इज इट रेनी सीजन इन थाईलैंड. क्या थाईलैंड में आजकल रेनी सीजन चल रहा है. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज वेल पीटर यू मस्ट नॉट अ मटीरियल बॉय दैट इज माई काइंड टू. मुझे लगता है तुम मटीरियल बॉय नहीं हो, लेकिन वो मेरा काइंड भी है. But the sentence is very much unclear and too long for a sentence. So the better and the easy sentence would be well Peter you are not a materialistic person like me. तुम मेरे जैसे materialistic नहीं हो. materialistic एक उस person को बोलते हैं जिसको पैसे से या फिर पैसे से जुड़ी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है. तो next time you see a person you can say him you are a materialistic person. Fine. Now the next incorrect sentence is आई एम सो मच प्लीजिंग टू टॉक विद यू. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. पहली बात तो आई एम सो मच प्लीजिंग का मतलब है मैं बहुत ज़्यादा खुशनुमा हूँ. यू कांट से दैट. सो द नेक्स्ट इज आई एम प्लीज टू. मुझे खुशी हुई तुमसे मिलके. सो आई एम सो प्लीज और हैप्पी टू टॉक विद यू. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज बट आई हैड सेंट इट फॉर 3 days. 3 दिन के लिए भेज दिया था, या फिर मैंने 3 दिन पहले भेज दिया था. मैंने ऑलरेडी भेज दिया था, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है. सो द नेक्स्ट राइट सेंटेंस वुड बी बट आई हैव सेंट 3 days अगो. अगो मतलब किया करते थे, हम ऐसे बोलते हैं ना स्टोरीज में, वंस अपॉन अ टाइम, या फिर 4 years अगो. इसका मतलब होता है कि इतने साल पहले. अगो का मतलब होता है पहले. सो बट आई सेंट इट 3 days अगो. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज हाउ इज गोइंग एवरीथिंग.
हाउ इज़ गोइंग एवरीथिंग, यहाँ पर गोइंग एवरीथिंग का मतलब होता है पहले हम एवरीथिंग से पहले अगर हम गोइंग लगा देंगे तो यहाँ पर सच में गोइंग का मतलब हो जाता है जाना. सो द राइट सेंटेंस इज हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, सब कैसा जा रहा है. सो नेक्स्ट टाइम यू आर आस्किंग समबडी, जब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिल रहे हो कि सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सो यू कुड से हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग. द नेक्स्ट इज I don't know how to speak it in English. I don't know how to speak it in English. तो the next is how to speak. पहली बात तो अगर इंग्लिश में कुछ बोला जाता है तो that is said, not spoken. Fine. So the right sentence would be I don't know how to say that in English. The next incorrect sentence is how many mountains exist in China. एग्जिस्ट, माउंटेन्स नेवर एग्जिस्ट. एग्जिस्ट क्या करते हैं, लिविंग बींग्स करते हैं, ठीक है. माउंटेन्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसके साथ हम एग्जिस्ट नहीं यूज़ करेंगे. एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है, रहना. तो अगर चाहे लिव हो गया, एग्जिस्ट हो गया, दे आर नेवर यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. माउंटेन्स जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ये नहीं यूज़ करोगे कि लिव या एग्जिस्ट. द राइट सेंटेंस वुड बी आर हाउ मेनी माउंटेन्स आर देयर इन चाइना, कितने माउंटेन्स हैं चाइना में. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज हाउ वॉज योर स्लीपिंग येस्टरडे जूडी. हाउ वॉज योर स्लीपिंग, तुम्हारी नींद में ले रहे तुम कैसे थे. स्लीपिंग कॉन्टिन्यूस टेंस तो कोई सेंस ही नहीं बनती क्योंकि पुरानी कोई बात हो रही है. सो कैसी नींद आई, बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है तुम्हें कैसी नींद आई. तो गुड सेंटेंस फॉर इट वुड बी डिड यू हैव अ गुड स्लीप येस्टरडे जूडी, क्या तुम्हारी नींद कल रात को अच्छी थी. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज यू आर नॉट गेट यूज टू इट. आई गेस तुम्हें इस चीज़ की आदत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है, ऐसे बोलना है. बट यू आर नॉट गेट, आप पहले तो बोल रहे हो यूज टू इट. यूज टू इट अपने आप में क्या हो गया, तुम्हें आदत नहीं है, मतलब पुरानी से कोई बात चलती आ रही है. यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बन रहा है. तो करेक्ट है यू आर नॉट यूज टू इट. यहाँ पर यूज टू क्या मतलब होता है, तुम्हें इसकी आदत नहीं है. यूज टू को जब इकट्ठा यूज़ किया जाता है तब उसका मतलब क्या बन जाता है, आदत. आदत. सो यू आर नॉट यूज टू इट. आई गेस मुझे लगता है तुम्हें इसकी आदत नहीं है. The next sentence is he is trying to look cute to make himself forgiven. वो क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको माफ़ कर दिया जाए. लेकिन इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि वो ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको माफ़ कर दिया जाए. द शॉर्ट एंड सिंपल एंड क्रिस्प यूजेज इज ही इज़ ट्राइंग टू गेट अवे विद बाय लुकिंग इट क्यूट. वो बचने की कोशिश कर रहा है क्यूट दिख के. द नेक्स्ट इज चेन आर यू इन्फॉर्म्ड, या फिर यू आर इन्फॉर्म्ड थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन. हाँ, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स. दैट डजंट मीन सेंस. द करेक्ट सेंटेंस 10 यू आर इन्फॉर्मेटिव. हाँ, तुम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो. हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था नॉलेजेबल, तो वैसे ही होगा इन्फॉर्मेटिव. जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो दैट इज़ इन्फॉर्मेटिव, और जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो दैट इज़ नॉलेजेबल, ठीक है. सो 10 यू आर इन्फॉर्मेटिव, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज वाई आर यू कम हेयर सो ऑफन. वाई के साथ आर, यू कम हेयर, कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए वाई डू यू कम हेयर सो ऑफन, तुम यहाँ पर अक्सर क्यों आते रहते हो. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज आर यू बॉर्न इन मलेशिया. आर यू बॉर्न, पहली बात तो बॉर्न मतलब पैदा हुए थे, सो आर डजंट मेक एनी सेंस हेयर. आर प्रेजेंट टेंस होता है. सो द राइट सेंटेंस इज वर यू बॉर्न इन मलेशिया, क्या तुम मलेशिया में पैदा हुए थे. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज वाई डोंट स्टे मोर टाइम हेयर. पहली बात तो इसमें ये हमने मेंशन ही नहीं किया कि हम किस नाउन को मेंशन कर रहे हैं. सो द राइट सेंटेंस वुड बी वाई डोंट यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, क्या तुम थोड़ी देर के लिए और क्यों नहीं रुक रहे हो. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज ही वॉज इन अ हॉस्पिटल एंड ही इज़ रिसेंटली आउट ऑफ इट. वो हॉस्पिटल में था और आजकल ही आउट हुआ है. जब भी हॉस्पिटल से कोई छूटता है ना उसको बोलते हैं डिस्चार्ज. डिस्चार्ज DISCHARGE. सो ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल रिसेंटली, उसको अभी अभी डिस्चार्ज मिला था हॉस्पिटल से. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज आई एम ऑल्सो फ्रॉम चाइना बट आई एम लिव इन फिलीपींस राइट नाउ. अब देखो आई एम ऑल्सो लिव इन चाइना, आई एम मतलब वो दो जगह पे रह रहा है क्योंकि हमने दोनों सेंटेंस जो है वो किस में यूज़ कर दिए, प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर दिए. सो फॉर श्योर एक पास्ट का होगा कि वहाँ से बिलोंग करता है लेकिन रहता यहाँ है. सो द राइट सेंटेंस वुड बी आई एम ऑल्सो फ्रॉम चाइना बट आई एम लिविंग इन फिलीपींस नाउ अ डेज, या फिर रिसेंटली.
तो मैं चाइना से बिलोंग करता हूँ लेकिन आजकल मैं फिलीपींस में रह रहा हूँ। द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज बट द चैट रूम ऑफ टीचर विद दिस चैट रूम आर डिफरेंट। अब बेसिकली वो बंदा क्या कहना चाह रहा है कि चैट रूम था जो टीचर का वो अलग है इस चैट रूम से, लेकिन जो सेंटेंस है वो हमने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बना दिया। सो डायरेक्टली हम कंपेयर करेंगे चीज़ों को कि बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टीचर्स चैट रूम एंड दिस चैट रूम, राइट। क्या तुम्हें भी लगता है कि टीचर्स का जो चैट रूम था और ये वाला जो चैट रूम है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है? द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज इफ़ वन डे आई एम गुड इन इंग्लिश आई वुड डेफिनेटली एडमिट इट। पहली बात तो अगर मैं इंग्लिश में अच्छा हो तो मैं ऐसा एडमिट करूँगा। एडमिट करने का मतलब होता है मैं ऐसा मानूंगा। तो दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग, कोई सेंस नहीं बन रही। तो इफ़ समडे आई एम गुड एट इंग्लिश, पहली बात तो कभी भी लैंग्वेज के लिए आप अच्छे हो तो गुड एट स्पेनिश, गुड एट हिंदी, तो एट आएगा उसके आगे, गुड एट समथिंग, ठीक है। आई एम गुड एट डांसिंग, नॉट गुड इन डांसिंग। द राइट वन इज गुड एट समथिंग, dancing, singing, swimming. You are good at those, not good in those. Fine. So the right is if someday I am good at English, I will definitely admit to it. मैं पक्का इस बारे में बात करूँगा। Next one is I have not 2 years meet him. पहली बात तो I have not 2 years meet him. क्या? कौन? तो द नेक्स्ट वन इज आई हैवंट मेट हिम फॉर 2 years, मैं 2 साल से उससे नहीं मिला है। तो prepositions एंड हेल्पिंग वर्ब्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द राइट सेंटेंस फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आता बोला क्या जा रहा है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ सिंपली अनइमेजिनेबल ऑन मी नॉट टू फाइट बैक। ये बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल है कि लड़ना नहीं है वापस। सो द राइट सेंटेंस इज इट इज़ सिंपली इनइमेजिनेबल टू मी नॉट टू फाइट बैक। ये मेरे लिए, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं वापस लड़ूँ ना। सो इट इज़ सिंपली अनइमेजिनेबल, इमेजिन मतलब सोचना, अनइमेजिनेबल मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। टू मी नॉट टू फाइट बैक। आई हेट माई बॉस, आई फील लाइक किकिंग ऑन हिज बट। मैं अपने बॉस से नफरत करता हूँ। द राइट सेंटेंस इज I hate my boss, I feel like kicking him. The next one is I do not like English, so I will go out here. मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है इसलिए मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। So the right sentence is I don't like English, so I am leaving here for now. मतलब मैं इस जगह से इस जगह को छोड़ रहा हूँ। So I am leaving here for now. The next incorrect sentence is this is the last time I went there as the doctor has unraveled the stitches. ये आखिरी बार था कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, डॉक्टर ने स्टिचेस को खोल दिया है, मतलब उसको ठीक कर दिया है। सो द राइट सेंटेंस इज टुक आउट द स्टिचेस। अनरेवल नहीं आएगा, क्या आएगा? टुक आउट द स्टिचेस, मतलब स्टिचेस निकाल लिए हैं, ठीक कर दिए हैं। सो इट वॉज द लास्ट टाइम दैट आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है एज द डॉक्टर टुक आउट द स्टिचेस, डॉक्टर ने ऑलरेडी स्टिचेस निकाल लिए हैं। नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज डेरेक वाई आर यू कम एंड गो एंड से नथिंग टू अस। तुम क्यों आ जा रहे हो और फिर भी कुछ बात नहीं कर रहे हो। सो द राइट सेंटेंस इज डेरेक वाई डिड यू कम एंड गो विदाउट सेइंग एनीथिंग टू अस। तुम इतना ज़्यादा आ जा रहे हो हमें बिना कुछ कहे, ऐसा क्यों? सो इज देयर समथिंग रॉन्ग? द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज आई मस्ट टू से दैट योर्स इंग्लिश इज़ परफेक्ट। हाउ डिड यू लर्न इट। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी इंग्लिश परफेक्ट है, तुमने इसको कैसे सीखा। बट द राइट वे ऑफ सेइंग दिस इज आई मस्ट से दैट योर इंग्लिश इज़ परफेक्ट। हाउ डिड यू लर्न इट, हाउ डिड यू लर्न, तुमने इसको कैसे सीखा, हाउ डिड यू लर्न इट। द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज आई वॉन्ट टू टॉक समवन। अब टॉक समवन, मैं किसी से, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं किसी से बात करना चाह रहा हूँ या फिर मैं किसी बात करना चाह रहा हूँ। पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो रहा है उसकी वजह से। हैंस किसी से में क्या आएगा? टू। आई वॉन्ट टू टॉक टू समबडी, समवन। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 2, यू आर राइट जस्ट नाउ आई हैव लाइजर पीटर। यू आर राइट, ये कोई सेंस नहीं बन रहा। सो आई हैव लाइजर इज नथिंग। लाइजर का मतलब होता है हमारा खाली टाइम, बट ऐसे सेंटेंस में उसको कहीं भी नहीं डाल देना। द राइट वन इज यू आर राइट आई वॉज फ्री जस्ट नाउ। तुम सही हो, मैं अभी अभी फ्री हुआ हूँ। The next incorrect sentence is I am very sorry for yesterday but my chief returned. I must to leave the chat room at once. मैं कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मेरा जो चीफ है यानी कि मेरा जो बॉस है वो वापस आ गए थे और मुझे I must to leave. I must to leave मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो आपकी, ऐसा करना पड़ा पास्ट टेंस। सो द राइट इज आई एम सॉरी फॉर द अब्रप्ट एग्जिट। अब्रप्ट मतलब अचानक से मैं एग्जिट कर गया चैट रूम को। abruptly exited because my boss suddenly turned up.
कोई आ जाता है ना अचानक से, उसको बोलते हैं टर्नड अप. माई फ्रेंड टर्नड अप आफ्टर 2 years एट माई प्लेस. आई गॉट अ कॉल, माई फ्रेंड टर्नड अप ऑन द कॉल, मतलब कि वो आ गए चैट पे. ठीक है. नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, आई डिडंट से बाय फॉर यू येस्टरडे. प्लीज़ डोंट बी एंग्री. मैंने बाय तुम्हारे लिए नहीं कही थी या फिर तुम्हें नहीं कही थी. तुम्हें नहीं कही थी इज़ द राइट थिंग ना. सो द राइट सेंटेंस वुड बी आई डिडंट से बाय टू यू येस्टरडे. प्लीज़ डोंट बी एंग्री. नेक्स्ट, बेटी आर यू इन्वेस्टिंग ऑन स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, स्टॉक मार्केट पर नहीं इन्वेस्ट किया जाता. सो द राइट प्रपोजिशन यूज बिफोर स्टॉक मार्केट वुड बी ऑन, नॉट इन. सो Betty, are you investing in the stock market? The next incorrect sentence is can you join me the talk. Can you join me the talk या फिर can you join the talk. So the next is can I join in the talk. Talk में join करना है, join me नहीं करना है. ठीक है, मुझे नहीं join करना, talk में यानी कि conversation का हिस्सा बनना है. The next incorrect sentence is we have full off and half off on Sunday. क्या full off half off? The right sentence would be we are given the option to work either full or half day on Sunday. मतलब संडे को हमारे पास ऑप्शन होता है कि पूरा दिन या फिर हाफ डे हम ले सकते हैं काम से. The next incorrect sentence is Kelvin don't be so jealousy. अब jealousy क्या होता है? jealousy क्या होती है? jealousy या तो एक noun है या फिर एक adverb है. लेकिन अगर आप एज ए एडजेक्टिव उसको ले रहे हो तो एडजेक्टिव की वजह से वो क्या बन जाता है? jealous. So are you jealous? क्या तुम्हें जलन हो रही है? The next incorrect sentence is the China. जगह के आगे कभी भी द नहीं आता है, except some exceptional cases. The China is coming to rainy weather. ऐसा कुछ नहीं है, वो rainy weather के पास नहीं जा रहा है. So China has या फिर rainy weather is there in China nowadays या फिर China is in rainy season now. All these 3 cities are similar warm as Malaysia. ये तीनों जो जगह हैं वो मलेशिया जितनी ही गर्म रहती है, वार्म रहती हैं. So the right sentence will be all of these cities are warm as Malaysia. मतलब वो बराबर ही गर्मी रहती है वहाँ पर. The next incorrect sentence is what time of the day now in your country. पहली बात तो what time of the day का मतलब होता है दिन में कौन से समय. लेकिन आपने पूछना है इस टाइम क्या समय है, तो उसकी क्या होती है? व्हाट इज़ द टाइम. ठीक है, तो द राइट इज व्हाट इज़ द टाइम नाउ इन योर कंट्री. इस टाइम तुम्हारी कंट्री में क्या टाइम है. द नेक्स्ट वन इज कम्स टू थिंक ऑफ इट इट साउंड्स राइट. कम टू थिंक ऑफ इट इट डज साउंड राइट. इसके बारे में तुम अच्छे से सोचोगे तो तुम्हें पता लगेगा ये एकदम सही है. सो द राइट सेंटेंस इज कम टू थिंक ऑफ इट इट डज साउंड राइट. लास्ट वन टाइफून लेट पर्सन 400 मिलियन डैमेज. जो आखिरी टाइफून था उसने 400 मिलियन का डैमेज कर दिया. तो एक तो लास्ट वन कुछ नहीं होता है. ठीक है, इट इज़ कोई करंट लेटेस्ट कुछ होता है. तो लेटेस्ट टाइफून हैज़ कॉस्ट पीपल 400 मिलियन डैमेज. लास्ट जो पूरा टाइफून आया था उससे कितना 400 मिलियन का डैमेज हो गया. नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज बट आई एम इलिटरेचर इन कंप्यूटर. इलिटरेचर कोई भी वर्ड नहीं होता. द राइट वर्ड इज इलिटरेट. इलिटरेट मतलब इस बारे में नॉलेज ना होना, और लिटरेट मतलब किसी बारे में पढ़ा लिखा होना, नॉलेज होना. सो द राइट सेंटेंस इज बट आई एम अ कंप्यूटर इलिटरेट. The next incorrect sentence is I can't follow you talk now. I can't follow you talk now. मुझे ऐसा फॉलो नहीं हुआ कि तुम बात कर रहे हो. So the right sentence is तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं हो कि तुम लोग बात कर रहे हो. So I can't follow what both of you talking about. मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो. The next incorrect sentence is you must know she is jealous very much. वो मुझे तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कितनी जेलस है. तो वो कितनी जेलस है पहले आना चाहिए. तो यू मस्ट नो हाउ जेलस शी इज बाय नेचर या फिर हाउ जेलस शी इज. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज सीम्स नथिंग चेंज टू मी. चेंज टू मी नहीं आएगा, चेंज इन मी, मेरे अंदर कुछ नहीं. तो इट सीम्स दैट नथिंग हैज चेंज टू मी. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज विल शी कम टू देयर सून. शी विल गो देयर सून. वॉन्ट शी, क्या बहुत जल्दी चली जाएगी, तुम्हें नहीं लगता. द नेक्स्ट इज टुडे इज वेरी स्लो. आज बहुत स्लो है. क्या स्लो है? द कनेक्शन इज वेरी स्लो. सो द कनेक्शन इज वेरी स्लो टुडे. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज बट यू नो अ लॉट अबाउट कंप्यूटर इजंट इट. आई नो नथिंग ऑल अबाउट इट. तुम्हें बहुत कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. सो द राइट सेंटेंस इज बट यू नो अ लॉट अबाउट कंप्यूटर्स. डोंट यू? आई माई सेल्फ डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. मुझे खुद से कुछ नहीं पता है इसके बारे में. Incorrect sentence next is the sales of light arms is the main cause of heavy casualty in conflicting nations. आजकल जो सेल्स है लाइट आर्म्स की वो मेन कॉज है किसका? हाई कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस का.
द राइट सेंटेंस टू इट इज द सेल ऑफ लाइट आर्म्स टू कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस. कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस मतलब जो नेशंस आपस में दुश्मन है, जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं. So the sale of light arms in conflicting nations is the main cause of heavy casualties. Casualty का मतलब जब कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से सीरियस कुछ हो जाता है और हम एडमिट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैजुअलिटीज. ऐसे होता है ना, कोई वॉर हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें कितने लोग पीड़ित हैं, तो दोज पीड़ित पीपल आर नोन एज कैजुअलिटीज. ठीक है, स्पेलिंग देख लो, CAUSALITIES. नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज व्हाई यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, आई एम जस्ट अ स्मॉल पीपल. स्मॉल पीपल, आई और पीपल कोई सेंस नहीं है. आई मेरे बारे में बात हो रही है, पीपल प्लूरल चीजें होती है मतलब लोग. सो व्हाई डू यू वांट टू नो अबाउट मी, आई एम नोबडी, मैं कोई नहीं हूँ, मेरे बारे में तुम इतना क्यों जानना चाहते हो. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज मेक श्योर दैट इट इज हाई पे जॉब. हाई पे जॉब कुछ भी नहीं होता, इट इज हाई पेइंग जॉब, मतलब जो जॉब हाई पेमेंट देती हो. सो मेक श्योर दैट इट इज अ हाई पेइंग जॉब. Next incorrect sentence is I wonder if there is a comment on the certificate by GE how good a student perform in the course. कोई स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म करे एक कोर्स में, उसके बारे में एक प्रॉपर कमेंट होना चाहिए सर्टिफिकेट पर. तो उसका एक करेक्ट सेंटेंस क्या है, I wonder if there is a comment on the certificate by the GE that how या फिर about how well, good नहीं आएगा, well मतलब कितना अच्छा था, how well a student performs in the course. Next incorrect sentence is we have lots of rain. हमारे पास बहुत सारी बारिश है, no sense. We have lots of rain because we are in monsoon season. It is there is a lot of rain this season because it's the monsoon season, or there is a lot of rain here as we are in the monsoon season right now. The next incorrect sentence is what is the temperature. Oh sorry, how much is the temperature. How much जो होता है वो numbers के लिए होता है. So the right one is how much is the temperature की जगह यूज करेंगे हम what is the temperature. The next incorrect sentence is don't you feel anger with me, I am just kidding. प्लीज डोंट यू फील एंगर का मतलब होता है तो क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे हो, लेकिन हम तो यहाँ पर एक अफॉर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं. तो इट इज डोंट बी मैड एट मी, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत हो. आई एम जस्ट किडिंग मतलब मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ. मजाक करने को इंग्लिश में बोलते हैं आई एम जस्ट किडिंग. डोंट बी मैड एट मी मतलब मुझ पर गुस्सा मत हो. नेक्स्ट इज किटी और हनी वॉज लेफ्ट जस्ट नाउ बिकॉज आई टोल्ड हिम यू विल कमिंग सून. तुम्हारा जो हनी है वो अभी अभी गया है क्योंकि मुझे लगा तुम अभी आने वाले हो. इट इज तुम किटी और हनी हैज जस्ट लेफ्ट एज आई टोल्ड हिम यू वुड बी कमिंग सून. मुझे लगा कि तुम अभी आने वाले हो. इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, आई एम चाइनीज एंड हैव बीन अब्रॉड 10 years. The next right sentence is I am Chinese and have been in abroad for the last 10 years. Okay, tell me how does he like. How does he like? वो कैसा दिखता है कि जो राइट इंग्लिश होती है बोलते हैं हाउ डज ही लुक लाइक, या फिर ओके टेल मी हाउ डज ही लुक लाइक, या फिर हाउ ही लुक्स लाइक. नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज आई थिंक यू शुड गो टू द अब्रॉड, फाइंड अ जॉब, मेक योर लाइफ अ लिटिल बिट चेंज्ड. कोई भी कंजंक्शन नहीं है, हमने दो सेंटेंसेस को मिलाया ही नहीं. सो द राइट सेंटेंस वुड बी आई थिंक यू शुड गो अब्रॉड टू फाइंड अ जॉब and conjunction to make your life a little better and a bit different for a change. Next incorrect sentence is Lillian is living far away with China. Lillian जो है वो बहुत दूर रह रहा है चाइना से. Lillian is living far away from China. Lillian जो है वो दूर रह रहा है चाइना से. विद नहीं आएगा, विद मतलब उसके साथ, किसी दूर चीज़ के हम साथ कैसे रह सकते हैं. फाइन. Next incorrect sentence is I am sure not even one man can control himself if he meet this kind of situation. Situation से कभी मीट नहीं किया जाता. The next one is I doubt मतलब मुझे शक है कि कोई भी जो एक पर्सन है वो कोई कंट्रोल कर सकता है अगर वो इस सिचुएशन में खुद हो तो. The next incorrect sentence is Are you a sailor, Alvin? सेलर कुछ भी नहीं होता है. इट इज इधर सेलर SELLER या फिर सेल्समैन SALESMAN सेल्समैन. आर यू अ सेल्समैन एल्विन? द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज द टीम ब्रिंग अ लॉट ऑफ अनहैप्पी फॉर द फुटबॉल फैन इन द वर्ल्ड बट नाउ आई एम डाउटफुल देम. आई एम डाउटफुल देम कोई सेंस नहीं बनती. आई एम डाउटफुल ऑफ इट. द टीम used to bring a lot of fun to the soccer मतलब फुटबॉल, ठीक है, soccer fans in the world but I am doubtful of them now. but मुझे उन पर शक है. The next incorrect sentence is I know you are good in computer and English. You are good in computer. अभी हमने बात की थी, कभी भी हम किसी चीज़ पर good in नहीं होते, good at होते हैं. So the right sentence is I know you are good at
computers or computing or and in English. The next incorrect sentence is I think your qualification will surely make you open a computer and English training center. The right sentence is I think you can open up computer and English training center with your qualifications. मतलब इतने qualified तुम हो. The next is I am so exceptional. I am no exceptional. मतलब मैं exceptional नहीं हूँ. The right sentence for this is I am no exception. I am no exception. The next incorrect sentence is it is easy or not to get visa. Is it easy to get a visa? क्या आसान है वीज़ा लेना? The next incorrect sentence is I wonder why are you keep study after graduating high school. मुझे शक है कि तुम अभी भी क्यों पढ़ रहे हो graduated high school पास करने के बाद भी. लेकिन उसका जो right sentence बनेगा it is I wonder, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, why you keep studying, अभी तक क्यों पढ़ते आ रहे हो after graduation high school, after graduation लेने के बाद अपने high school से अभी तक क्यों पढ़ते आ रहे हो. नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज ही विल बी ग्रेट हेल्प फॉर यू. वो तुम्हारी अच्छी मदद कर सकता है. सो द राइट सेंटेंस इज ही विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. फॉर यू नहीं, इट्स टू यू. हेल्प किसी के लिए टू की जाती है, ठीक है. टू इज द राइट प्रपोजिशन दैट वुड बी यूज्ड है. नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज एम आई अ सिंपल गर्ल एंड हैज नॉट एनी ब्रेन. पहली बात तो आई के साथ कभी हैज नहीं आएगा, हैव आएगा. सो एम आई अ नेव लेडी हु डजंट हैव इंटेलिजेंस. The next incorrect sentence is what sport are you interested? What sport are you interested in? ठीक है, किसी चीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं, में होते हैं. So what sports are you interested in? Incorrect sentence number next. Can you tell me why what is your birthday date? यहाँ पर क्या है? When are you birthday date? Birthday date में कब क्या करना? When is your birthday date? या फिर can you tell when is your birthday date? Next incorrect sentence is should we continue our speak in English language? Should we continue speaking in English? क्या हमें English बोलते रहना चाहिए? The next is do you like your female staff flirted with you when you be boss? Would you mind if your staff flirted with you when you were a boss? ठीक है. Where is the students come from? Where is the नहीं, where do the students come from? कहाँ से आते हैं वो? So where do the students come from? I wonder have you been a teacher before? मैं ऐसा सोच रही हूँ क्या तुम पहले टीचर थे? So I wonder if you were a teacher before. The next one is how long does the news last? ये न्यूज़ जो है वो कितनी लंबी चलती है? We better don't tell others. हमें औरों को नहीं बताना चाहिए. We had better not tell others. हमें औरों को नहीं बताना चाहिए था. ठीक है. Next incorrect sentence is I am worried about your English level will getting worse if you talk only to me. मुझे लगता है कि तुम्हारा जो English level है वो कम से कम होता जाएगा अगर तुम मुझसे ही बात करते रहे तो. The next right one is I am worried that your English will get worse if you only talk to me. मुझे लगता है कि तुम्हारी English और भी ख़राब हो जाएगी अगर तुम मुझसे ही बात करते रहे तो. The next one is I am the only one graduated from the high school. मैं एक ही हूँ क्या जो इस ग्रेजुएट स्कूल है. नेक्स्ट वन इज आई एम द ओनली वन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल. क्या मैं अकेला ही हूँ जो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा है? एक ग्रुप में हम पूछ रहे हैं ये बात, ठीक है. नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज इन फैक्ट आई वॉन्ट माई लाइफ हैड अ लिटिल बिट चेंज. मुझे लगता है, और फिर हम पास्ट की बात करें कि थोड़ा बहुत चेंज हो जानी चाहिए थी. द राइट वन इज इन फैक्ट आई वॉन्ट टू हैव सम चेंज इन माई लाइफ. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज हाउ डू यू थिंक माई आइडिया. अब देखो हाउ डू यू थिंक अबाउट माई आइडिया, कैसे सोच रहे हो, इससे बेटर है क्या सोच रहे हो. तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई आइडिया. एम आई कंप्लीट राइट? एम आई कंप्लीट राइट पूछे, इट इज एम आई कंप्लीटली राइट. क्या मैं पूरे तरीके से सही हूँ? तो यहाँ पर राइट का क्या है? एडवर्ब है कंप्लीटली. सो एम आई कंप्लीटली राइट. द नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज कुड यू करेक्ट मी दिस लेटर. अब देखो कुड यू, द बेटर वर्ड इज वुड यू, और करेक्ट मी दिस लेटर की जगह क्या आएगा? दिस लेटर टू मी. सो वुड यू करेक्ट दिस लेटर फॉर मी या फिर टू मी. नेक्स्ट इज थैंक्स आई नो लॉन्गर नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स ओपिनियन एनी मोर. थैंक्स, मुझे किसी की भी ओपिनियन की वेट करने की जरूरत नहीं है. बट द राइट फॉर्मेशन इज थैंक्स आई नो लॉन्गर नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स ओपिनियन. मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और के ओपिनियन की वेट करने की. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉमन एरर्स. हमने आज 100 से भी ज़्यादा सेंटेंसेस पढ़े जो कि गलत बोले जाएँ, और उनमें ही हम अच्छे से हेल्पिंग वर्ब्स और प्रेपोजिशंस का यूज़ करके, अच्छे टेंसेस का यूज़ करके कैसे उन्हें एक राइट सेंटेंस और अ प्रोफेशनल इंग्लिश सेंटेंस की तरह बोल सकते हैं. आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.